डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस में कंज्यूमेबल्स का एक्सपेंडिचर आप पता करिए, लेबोरेटरी में कितना, एक्सरे में कितना, एमआरआई में कितना, सर्जरी करते हैं तो कंज्यूमेबल कितना जाता है, कैथ लैब करेंगे तो कंज्यूमेबल कितना जाएगा, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट सर्जरी करेंगे तो कितना जाएगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, वो कैलकुलेट कीजिए। एनर्जी मैंने 4% वाटर, medical, gas, food, everything. So cal kind of expense assumption, so that you come up with and cash flow. This your CA, that, but कवरेज रेशियो, अगर आप कर्जा लेके हॉस्पिटल बना रहे हो, देन DAR इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, है ना। ये है कि हम अगर कर्जा लेते हैं तो हमारी एबिलिटी टू रीपे लोन क्या है, दैट इज व्हाट DSCR इज। So for hospital projects, and it should be generally more than 1.5. ठीक है, you don't need calculate it, it will, someone can calculate, Excel में अपने आप निकल जाता है, मतलब नहीं आनी चाहिए, but the formula is given, net operating income divided by the debt service. So this should be more than 1.6 on an average of 10 years. Okay. Then there is something we call as internal rate of return. हम अगर लोन ले रहे हैं, आज के तारीख में लोन लेने जाएंगे, कितने मिलेगा? एनीबॉडी? 7%. So if you calculate your IRR, it needs to be more than 7%. Only then you should go on the project. अगर आपका IRR 7 से कम है और bordering 7 है, then you are in dangerous waters. All right, so you should not go for that project. Go back to your drawing board and try and see, when you can change, tweak your project कि IRR सुधरे, phasing करिए, cost को कम कीजिए, ज़्यादा equity लाइए, only then your IRR will improve. Okay, so IRR is something which you need to understand. Interest rate से ज़्यादा होना चाहिए. All right, 1 or 2% more from the interest rate. Just to tell you, current IRR of hospitals can vary between 9 to 12 or 13%. Okay, केवल ophthalmology, IVF or some other specialty जिसमें IRR ज़्यादा आता है. Right? Otherwise, most other hospitals, it's not very profitable to run hospitals. So that is why these are things which are important for you to understand. Then we do something which is called as sensitivity analysis, or you can also call it as a what if analysis. What if का मतलब है, what if project cost overruns by 20%. All right, तो क्या सिनेरियो बनेगा? Okay, so what will happen with 20% increase? आपका डेट बर्डन बढ़ जाएगा, राइट? 100 करोड़ का हॉस्पिटल 120 करोड़ में बना रहे हो, 50-50 डेट लिया है, तो 50 की बजाय आपको 60 करोड़ लाने पड़ेंगे, है ना, और 60 करोड़ का डेट, तो 10 करोड़ का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, राइट? सिमिलरली मीन्स ऑफ फाइनेंस चेंजेस इन डेट एंड इक्विटी. आप समझिए ज़्यादा इक्विटी नहीं ला पा रहे हैं, द टेंडेंसी अमंग दस इज ज़्यादा लोन ले लो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड यू हैव टू रीपे इट ऑल्सो. ओके, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन, ऑलराइट, तो दिस कैन डैमेज यू. अभी जैसे हाउसिंग लोन के रेट्स बढ़ा दिए रिजर्व बैंक ने, so your housing loan is now being more expensive. Suppose this happens to you, suppose Indian currency goes weaker to the dollar. हर किसी को मालूम है कि 80 to 90% of the money in hospital project equipment is imported, right? So if the dollar fluctuates more, your project cost will fluctuate. All right, so you need to be very careful of what you are getting into. Hike in salary. So what you should do is prepare the worst case scenario and see whether you can face that worst case scenario. If not, then you should be careful, maybe change whatever phasing or change the size, or for Indian equipment or whatever, whichever way you look at it, bring in more equity. All right, but don't go for it if you feel hesitant to face worst case scenario. Then structuring project finance, based on all that I have said, you can look for best option debt equity ratios. आपके केस में if you want to set up a therapy hospital, then donations is the thing.
That could be in Indian rupee or foreign exchange. Leasing options. This is asset light. मतलब हम खुद पैसा नहीं लगाएं और छोटा हॉस्पिटल है 30-40,000 स्क्वायर फीट, यू कैन एक्चुअली टेक इट ऑन लीज. आपको पूरा कैपिटल डालने का जरूरत नहीं है, आप केवल लीज रेंट दे के यू कैन गेट अवे. यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट 30-40 करोड़. यू कैन जस्ट पुट 2-3 lakhs per month. Big difference. ऑलराइट. इक्विपमेंट लीज, रिएजेंट रेंटल मॉडल्स आते हैं. पूरी लेबोरेटरी आप रिएजेंट रेंटल मॉडल पे चला सकते हैं. जेरोक्स मशीन फ्री में आ गई, सामने वाला ने कहा कि मेरा 2000 पेपर निकलना चाहिए, मशीन आप रख लो. या ये कॉफी वेंडिंग मशीन 200 या 500 कप महीने के मिनिमम गारंटी, मशीन आप अपने पास रख लो. सेम वे यू हैव नाउ मॉडल्स फॉर लेबोरेटरी. वेरी सून यू मे गेट सेम फॉर रेडियोलॉजी ऑल्सो. यू शुड ट्राई एंड गो फॉर दैट. ऑलराइट. Such an approach, will help you to become a viable kind of a project, and credibility will go up. Coming to part 2, which is more to do with hospital design and planning. आप देखिए, what is the kind of area that you require. हम नीचे से ऊपर जाते हैं. एक छोटा नर्सिंग होम बनाने जाएंगे, आप 200 से 300 स्क्वायर फीट पर बेड में आप एक नर्सिंग होम बना लेते हो. बट चैरिटेबल ट्रस्ट वाले जब आप बनाने जाएंगे, दिस विल बी बिगर. ओके, दिस विल बी लाइक 600-700-800 स्क्वायर फीट पर बेड. कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, फोर्टिस, मैक्स और इस तरह के जो हॉस्पिटल्स हैं, दे विल बी इन 800-1200 स्क्वायर फीट पर बेड. ओके, सो दिस इज नॉट लाइक 100 बेड का हॉस्पिटल तो 1 लाख स्क्वायर फीट बन जाएगा. ठीक है, 500 बेड का हॉस्पिटल तो यू कैन इमेजिन. एंड देन देयर इज मेडिकल कॉलेज कैंपस, which is like 20 acres of land and maybe 10 लाख स्क्वायर फीट से 11 लाख स्क्वायर फीट जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना है. तो हमें करना क्या है, सबसे पहले यू मेक अ स्पेस प्रोग्राम. स्पेस प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ कि मैं समझिए आपका ओपीडी है, 10 ओपीडी है, राइट. तो 10 ओपीडी, एक ओपीडी की साइज समझिए आप 150 स्क्वायर फीट. आई एम जस्ट गिविंग यू अ फिगर. In Bombay we use 120 square feet, जगह कम है. 150 into 10 OPDs is fixed, right? फिर रिसेप्शन 100 स्क्वायर फीट, टॉयलेट 200 स्क्वायर फीट, वेटिंग एरिया पर पर्सन, आप जिस कुर्सी पे बैठे हो आप 4 स्क्वायर फीट की जगह घेर रहे हो. ठीक है ना. अब आप एक ओपीडी लीजिए, एक ओपीडी में 1 घंटे में 4 मरीज अगर आते हैं, आई एम जस्ट टेकिंग सम असम्पशन, उसके साथ में एक जना और आएगा, तो 8 लोग आएंगे एक ओपीडी में 1 घंटे में. मल्टीप्लाई इट बाय 10, 80 लोग, समझिए 100 लोग जितना वेटिंग, डिपेंडिंग ऑन 4 स्क्वायर फीट. इस तरह से हमने ओपीडी का स्पेस प्रोग्राम बनाया. फिर आप ऑपरेशन थिएटर का बनाइए. पर ऑपरेशन थिएटर कैन नॉट बी लेस देन 400 स्क्वायर फीट एज पर NABH गाइडलाइन, राइट. सुपर स्पेशलिटी बनाने जा रहे हैं 625 स्क्वायर फीट पर ऑपरेशन थिएटर. फिर उसके पहले वाली जगह प्री एंड पोस्ट ऑप, राइट. चेंज रूम, राइट. एनेस्थेटिस्ट रूम, डर्टी यूटिलिटी, स्टोर रूम के साथ. फिर एक ऑपरेशन थिएटर जनरली 1000 to 1500 स्क्वायर फीट का बनता है. पूरा कॉम्प्लेक्स अगर लेते हैं 4 जाएंगे तो जगह जस्ट ऑपरेशन थिएटर को लगेगी. तो इस तरह से हम एक पूरा फंक्शनल स्पेस प्रोग्राम बनाते हैं. ये सारे डिपार्टमेंट बनने के बाद यू हैव टू ऐड अबाउट 30% मोर फॉर staircases, lift, entrance lobbies, इंजीनियरिंग के कमरे, राइट. केवल डिपार्टमेंट का उससे नहीं होगा, आपको और एक्स्ट्रा 30 से 40% जगह ऐड करनी पड़ेगी. ये आप पहले बनाइए, इसको ध्यान से देखिए कि ये आपके सही हो रहा है नहीं हो रहा है. एंड देन यू गिव दिस टू द आर्किटेक्ट टू डिजाइन. तो उसको तो मालूम ही नहीं है क्या है, ओटी कितना बड़ा होता है, MRI कितना बड़ा होता है, उसको कुछ भी नहीं मालूम, राइट. अनलेस यू गिव हिम दिस, वो कुछ नहीं कर पाएगा. दूसरा, हम एक डिपार्टमेंटल नीड्स प्रोग्राम बनाना जरूरी है फॉर डिपार्टमेंट्स विच आर टेक्निकली डिफरेंट. लीनियर एक्सीलरेटर फॉर एग्जांपल 6 फुट थिक कंक्रीट वॉल लगती है ना. इट्स लाइक अ बंकर, क्योंकि रेडिएशन का हिसाब है. ठीक है ना. तो उसके लिए आपको 6 मीटर इतना, इससे टेढ़ा आपको छत लगेगा फॉर कैंसर. MRI 10 टन का मशीन है. ठीक है, हर जगह पे नहीं रख सकते क्योंकि स्लैब उतना स्ट्रेंथ लेना जरूरी है. ठीक है. MRI में आप 6 मीटर गैंट्री से लेंगे, आप कोई मूविंग मेटेलिक पार्ट नहीं लगा सकते, कोई
एलिवेटर नहीं हो सकता, उसके नीचे से गाड़ी नहीं जा सकती, उसके बाहर से गाड़ी नहीं जा सकती, सो मेनी थिंग्स फॉर MRI। न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, ओके, CSSD, माइक्रोबायोलॉजी में आप जो माइक्रोबायोलॉजी का कमरा है उसकी पूरी हवा आपको बाहर फेंकनी पड़ेगी, अदरवाइज इट विल क्रिएट इन्फेक्शन। तो सच डिपार्टमेंटल नीड्स के जो जरूरत है वो आप उस स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट से बात कीजिए, राइट? डोंट गो एंड डू समथिंग व्हिच यू विल हैव टू ब्रेक टुमारो, राइट? सो मेक दैट, प्रोवाइड ट्रैफिक assumptions एट पीक लोड। आप इंडिया का कोई भी एयरपोर्ट देख लीजिए, दे आर नॉट एबल टू नाउ टेक द लोड, राइट? कहीं भी चले जाइए, टॉयलेट कम है, वेटिंग एरिया नहीं है। अभी मैं दिल्ली जाऊंगा, आई नो आई लैंड अप एट से T1 टर्मिनल, तो वहाँ तो बैठने की जगह नहीं मिलेगी, नहीं, राइट? अनलेस यू डिजाइन दैट एट अ पीक लोड कैपेसिटी, यू विल ऑलवेज हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है? कीप दैट इन माइंड, स्पेसिफाई स्टेरिलिटी एंड टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट, देयर आर समथिंग लाइक दैट। फिर ब्रॉड गाइडलाइंस ऑन यूटिलिटीज। यूटिलिटीज का मतलब है एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रिकल, वाटर, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, मतलब आप एयर कंडीशनिंग देखने जाओगे तो उसके स्टैंडर्ड्स हैं। कोविड में हम समझ में आ गया कि अनलेस यू मेक अ नेगेटिव प्रेशर रूम, इन्फेक्शन विल स्प्रेड, राइट? सो दैट इज व्हाई देयर वर ऑल नेगेटिव प्रेशर रूम। सिमिलरली वाटर के लिए यू नीड रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट, इज़न्ट इट? इस तरह की जो यूटिलिटीज की जरूरतें हैं जो नॉर्मल आर्किटेक्ट या इंजीनियर को नहीं पता, तो आपको उसको बतानी पड़ेगी। देयर आर स्टैंडर्ड नाउ गिवन by the government also. So it is available on the website. So you should see all those things. Expansion अगर आप सोच के चल रहे हैं आज, then you should understand कि मेरे को कल के लिए कैसे कनेक्ट करूंगा, मेरी पावर कहाँ से आएगी, मेरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ होगा, वाटर टैंक कहाँ होगा आज के लिए, और राइट? तो एक्सपेंशन में वो अगर आप वर्टिकल जाना चाहते हैं तो फाउंडेशन वैसी लगेगी, हॉरिजॉन्टल जाना चाहते हैं तो कनेक्टिविटी वैसी लगेगी, पार्किंग लगेगी। So all that you need to think now, okay? और लोकल रूल्स हर जगह पे बदल जाएंगे। बॉम्बे में जो हॉस्पिटल के रूल्स हैं, लाइक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में आप जाएंगे तो एवरी हॉस्पिटल को मैंडेटरी है कि उसको रैंप बनाना जरूरी है। विदाउट रैंप यू विल नॉट गेट अ परमिशन। इवन इन चेन्नई, यू विल नॉट गेट अ परमिशन अनलेस यू पुट अ रैंप, ठीक है? आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, हम जबलपुर में कुछ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ चीज FSI में गिनी जाती है, कुछ चीज नहीं गिनी जाती। FSI FAR आप समझते हैं मेरे ख्याल, तो वो चीज एवरीथिंग, पार्किंग के रूल बदल जाएंगे, है ना? और पार्किंग नाउ इज बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट। फायर सेफ्टी के रूल बदल जाएंगे, अभी गुजरात है बिकम वेरी स्ट्रिक्ट आफ्टर अ फ्यू फायर इंसिडेंट्स, टू द एक्सटेंट तो कह रहे हैं कि अगर आपने कहीं कमर्शियल बिल्डिंग में लगा दिया तो आपका कर्टन भी फायर रेटेड होना चाहिए, और तो जितना पेशेंट को उड़ा रहे हो वो भी फायर रेटेड होना चाहिए। They have gone to some other extreme, so all those codes, कोई भी सीढ़ी हो वो 2 मीटर चौड़ाई की होना जरूरी है, मैंडेटरी। 1.5 मीटर की वो तोड़वा देंगे, ओके? दैट्स हाउ इट हैज बिकम। बेसमेंट का यूजेज पहले हम कुछ भी करके बेसमेंट में फिर बाद में डाल देते थे, नाउ इट इज नॉट अलाउड। यू कैनॉट पुट किचन इन बेसमेंट, you cannot put laboratories in basement just like that, okay? It is not possible no longer to do that. So these local rules आपके स्टेट या सिटी का आपको समझना है। Then so many actually you need one job, इतने सारे लोग हमको लगाने वाले हैं, उनको लगता है केवल आर्किटेक्ट बना लिया और हो गया, नहीं। You need structural engineer, air conditioning, electrical, firefighting, interior, biomedical, tremendous amount of coordination that you will require. लास्ट में सेकंड लास्ट पॉइंट देखेंगे आप, ग्रीन बिल्डिंग, एनर्जी सेविंग, है ना? सम म्यूनिसिपैलिटीज लाइक इन पुणे सिटी, इफ यू गो विद अ ग्रीन बिल्डिंग हॉस्पिटल टैग, आपको इलेक्ट्रिसिटी में रिबेट मिलता है, प्रॉपर्टी टैक्स में रिबेट मिलता है, FSI ज्यादा मिलती है। So this kind of advantages also, and we are also fighting with the government, to get more and more hospitals to agree to go for, I will skip this, time is a little less, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा। ये regulations का मैंने पहले ही बात कर लिया। Now when we come to a hospital, मतलब this is what becomes important in terms of, जब आप स्पेस प्रोग्राम बना लेते हैं, दूसरी चीज जो आपको करनी होती है वो मैं कौन से फ्लोर पे क्या बिठाऊं, है ना? कौन से फ्लोर पे क्या बिठाऊं, और उसको बिठाने के लिए हमको ये ग्रिड
ये जो 4 लाल कॉलम दिख रहे हैं आपको, दैट इज द कॉलम. दिस ग्रिड इज इंपॉर्टेंट. ओके, 8 से 9 मीटर की ग्रिड होना हॉस्पिटल्स के लिए इज द बेस्ट, बिकॉज यू कैन फिट इन अ सिंगल रूम, ट्विन रूम, जनरल वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, इंटेंसिव केयर यूनिट विद 8 to 9 मीटर ग्रिड. वो ग्रिड को अगर आपने दबा दिया, छोटा कर दिया, तो आपको मालूम पड़ेगा आप ट्विन बेड बैठ ही नहीं रहा है, ऑपरेशन थिएटर के बीच में से बीम जा रही है. ऑल दोस प्रॉब्लम विल स्टार्ट हैपनिंग. तो सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर ग्रिड इज इम्पॉर्टेंट. मैंने वहाँ दिया हुआ है प्रेजेंटेशन, राम सुब्बा जी के पास है, कैन बी शेयर्ड विद एवरीवन. So this is what I am trying to explain, that the same grid can be used for various types of rooms. Okay. Then there is something called stack planning. Stack planning मतलब क्या है कि it is something like this. जब हमने स्पेस प्रोग्राम बना लिया तो हमको मालूम है 20,000 स्क्वायर फुट का एक फ्लोर है. आप स्पेस प्रोग्राम में से वो डिपार्टमेंट ढूंढिए जिसका कलेक्शन 20,000 हो जाएगा, एंड एडजेसेंसी आपको चाहिए, लाइक इमरजेंसी, रेडियोलॉजी, फार्मेसी, necessarily has to be on the ground floor. बराबर, right? If you have more area, you can add maybe some OPDs or something like that. Operation theater, surgical intensive care unit, CSSD, cath lab should be together. Maternity में operation theaters, delivery room, NICU should be together. So this is what we call as a stack plan. जब आप ये करते हैं, one important thing you have to look at is the height of the floor. Okay? तो आप इस ड्राइंग में देख रहे हैं कि नीचे वाले जो फ्लोर है वो 4.2 मीटर हाइट, विच इज लाइक 14 फीट, अप टू द ऑपरेशन थिएटर. उसके ऊपर आप सर्विस फ्लोर लिखा हुआ देख रहे हैं, विच इज 2400 to 2.4 मीटर, मतलब 8 फुट, जहाँ पे आप सारे एयर हैंडलिंग यूनिट्स और इस तरह की चीजें लगाते हैं, विच इज फ्री ऑफ FSI. और उसके ऊपर कमरे, राइट. सो दिस स्टैकिंग इज इम्पॉर्टेंट. ये मैं लास्ट स्लाइड है ये. दिस इज वी आर डूइंग समथिंग फॉर IIT कानपुर. दिस इज School of Medical Sciences and Technology on campus of IIT Kanpur. The idea is to make technology indigenous. मतलब हमारे यहाँ पे MRI बने, हमारे यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी बने, उसके लिए. Why I am putting this one floor actually is one hospital, right? जो ये वाला देख रहे हैं आप, दिस इज ऑल इंटेंसिव केयर यूनिट टॉप टू बॉटम, 5. दिस इज ओनली अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल. द सेकेंड बार इज ऑल डायग्नोस्टिक्स, और उसके अगेंस्ट में OPD, फिर जनरल वार्ड और प्राइवेट रूम, एवरीथिंग ऑन वन फ्लोर. तो कार्डियोलॉजी है तो उसका पूरा मतलब कार्डियक सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक नर्सेज, RMO सब एक ही फ्लोर पर रहेंगे. सिमिलरली फॉर ब्रेन, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एंड ऑन्कोलॉजी. दिस इज. अब इसमें हमने इसको पतला क्यों बनाया है, ये कोविड के दौरान बनाया था. तो इट इज ओनली 18 मीटर्स के ये बार्स हैं सारे. आपको एम्पल लाइट एंड वेंटिलेशन मिलेगा. हॉस्पिटल इज सेंट्रली एयर कंडीशन, वो बात अलग है, बट इफ इन केस ऑफ कोविड यू ओपन विंडो, यू विल गेट अ क्रॉस वेंटिलेशन, राइट. सो दैट इज व्हाई दिस इज क्रिएटेड लाइक दिस. लाइट और वेंटिलेशन का एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है. So I thought, time is up, so I think I am also done. All right. Any questions? I am happy to answer. I hope it was useful because ये बिल्कुल अलग. This is not as per your. Thank you, sir. Thank you for wonderful insight. I'll request Dr. Vimla from Chennai, Dr. Sohan Raj from Chennai to facilitate, sir.
Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Our next speaker is a young and dynamic surgeon, Dr. Dheeraj. He is a consultant urologist, enterologist, urethra and penile reconstructive surgeon, and he has been working in NCR for the last 17 years. He is an expert endourologist and he does all kinds of urology procedures, including open and closed. He did his surgery from Jaipur and MCH from Navi Mumbai. He is right now director of Kuber Hospitals and Urology Center, Dr. Dheeraj. We will be speaking about management of renal stones, the latest minimal invasive surgical procedure. No, Maran. Good afternoon, everyone. Thank you for providing me an opportunity to stand in front of you all. I feel highly obliged. So, I'll be talking about minimal invasive surgery in the management of renal stones. I'm Dr. Dheeraj Shankula, working as a consultant urologist in Delhi. तो बेसिकली बात करते हैं किडनी स्टोन्स के बारे में. किडनी स्टोन्स क्या है? किडनी स्टोन कुछ नहीं, बस एक हार्ड डिपॉजिट होते हैं जो मिनरल और सॉल्ट से बनाए जाते हैं, जो कि आपकी किडनी के अंदर फॉर्म हो जाते हैं. अब कॉमनली इसी तरह के स्टोन देखे जाते हैं. मोस्ट कॉमनली कैल्शियम ऑक्सिलेट की तरह के स्टोन होते हैं, जिसमें कि कैल्शियम और ऑक्सिलेट की मात्रा अधिक होने की वजह से बन जाते हैं. या फिर स्टोराइड स्टोन, जिसे कि इन्फेक्शन स्टोन कहा जाता है, जो कि आपके इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म जैसे कि ई कोलाई प्रोटीज वगैरह से बनते हैं. या आपके स्टोराइड स्टोन, अदर 16 स्टोन, विशाल स्टोन, जो कि लेस कॉमन होते हैं और हेरिडिटरी फैक्टर्स का उसमें रोल है. मेन कारण क्या है स्टोन्स बनने का? बहुत मेन कारण होता है कि हम लोग जो पानी कम पीते हैं या इम्प्योर पानी पीते हैं, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा इंसिडेंस स्टोन फॉर्मेशन होने का. हमारी इनप्रॉपर डाइट एक मेजर कारण बनता है. अगर हम एक हेल्दी डाइट फॉलो नहीं करते हैं तो भी स्टोन बनने के चांसेस रहते हैं. बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, वेट बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ एक तरह की जेनेटिक कंडीशन में भी ये चीज़ें देखी जाती हैं. Kidney stone disease is reported with a lifetime prevalence of 10 to 12% in men and 5 to 6% in women. Now, patient of a kidney stone generally present in the age group of 30 to 50 years of age, and the main complaint with which she presents is she complains of pain, mainly in the loin or radiating to the groin, which is also associated with other urinary complaints such as frequency, urgency, hesitancy. Sometimes it may also be associated with urinary tract infection, dysuria, urocystis. However, few patients present totally asymptomatic. They don't have any symptoms at all. Just because they got it diagnosed on a routine ultrasound investigation, they report to us with a diagnosis of a renal stone. Now, how the patient evaluation? How patient kidney stone is evaluated? जब एक पेशेंट हमारे पास आता है तो पेन के साथ हम एक डिटेल हिस्ट्री लेनी होती है, एक थोरो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना होता है, साथ साथ कुछ रूटीन ब्लड और यूरिन के टेस्ट किए जाते हैं. तो इसके साथ कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन जैसे कि अल्ट्रासाउंड यह फिर किया जाता है. इन इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है.
जैसे कि आईवीपी, सीटी स्कैन या रीनल स्कैन। आईवीपी जो एक प्रोसीजर होता है, इसके अंदर हमें किडनी की पूरी एनाटमी पता लगती है, जो कि हमें ऑपरेशन के दौरान बहुत हेल्प करती है कि किडनी की एनाटमी कैसी है, किस तरीके के ऑपरेशन के उसमें किए जा सकते हैं। सीटी स्कैन में हमें पता लगता है कि स्टोन का एग्जैक्ट साइज क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, स्टोन की हार्डनेस क्या है और कौन सी ट्रीटमेंट मोडेलिटी के लिए वो फिट बैठे हैं। रीनल स्कैन बहुत कम केसेस में जरूरत पड़ती है, जिन कंडीशन में स्टैगॉन स्टोन, जिसका कि मतलब होता है कि जो स्टोन पूरी किडनी में भरा हुआ है, उसके बाद हमें स्कैन से ये पता लगता है कि वो किडनी काम कर भी रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि अगर काम नहीं कर रही होगी तो उसमें से स्टोन रिमूव करने का कोई फायदा नहीं होगा। उन कंडीशन में डायरेक्ट किडनी को ही रिमूव किया जाएगा। So nowadays the trend has been shifting towards more and more minimally invasive surgery. In urology we call it endourology. As a famous saying by Rolf Clement, who was a famous endourologist of his time, from knife to needle to nothing. Earlier there used to be very big operations with a very big incision in the abdomen. Patient used to stay in the hospital for a very long period of time. There was too much of tissue trauma, blood loss. But now those modalities have changed into the minimal invasive surgery. Like nowadays we are opting for CCNL, which is also known as percutaneous nephrolectomy, or RIRS, which is also known as retrograde intrarenal surgery. Now there is a rising trend in these type of surgeries these days. ऐसा क्यों है कि ये कुछ मिनिमल इन्वेसिव का आजकल ट्रेंड चला हुआ है? इसका कारण ये है क्योंकि इनमें बहुत छोटा इंसिजन होता है, बहुत कम पेन होता है, बहुत कम ब्लड लॉस होता है, बहुत कम इन्फेक्शन होता है, पेशेंट जल्दी ठीक होता है, जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है और जल्दी अपने घर पे जाके अपना काम शुरू कर सकते हैं। Now, coming back to management of renal stone in general, there are certain management options which are present to us today. One being the conservative therapy or medical therapy, open surgery, shockwave lithotripsy, or endourology, which comprises of URS, PCNL or RARS. अगर बहुत छोटे स्टोन है, 3-4 mm साइज स्टोन है, तो उसके लिए कोई ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती, वो सिंपल पानी से, अपने लाइफस्टाइल हैबिट से उन्हीं से निकल जाती है, इसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओपन सर्जरी की इंडिकेशन आज के सिनेरियो में बहुत ही लिमिटेड हो चुकी है, हार्डली किसी स्टोन पेशेंट में ओपन सर्जरी की जाती है। इसके अलावा शॉक वेव लिथोट्रिप्सी जो है, इसके अंदर एक तरीके की ये एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, इसमें कोई चीरा वगैरह नहीं लगाया जाता। इसमें बाहर से लेजर तरंगें छोड़ी जाती है जो कि आपके स्टोन को फ्रेगमेंट कर देती है। तो इसकी प्रॉब्लम ये है कि एक सिटिंग में स्टोन टूट पाना बड़ा मुश्किल होता है, कई बार इसमें मल्टीपल सिटिंग्स भी देनी पड़ती है और उसके बावजूद भी स्टोन नहीं टूटता, और कई बार स्टोन टूट जाता है तो उसके कुछ फ्रेगमेंट्स अंदर रह जाते हैं। इसलिए आजकल जो ट्रेंड है वो एंडोयूरोलॉजी की तरफ, जो कि मैंने आपको ये नाम बताया, PCNL, URS और RRS की तरफ है। आज हम बात करेंगे इन डिटेल अबाउट PCNL, जिसे कि हम परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी भी बोलते हैं। PCNL जो है आज की डेट में एक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट एस्टेब्लिश हो चुका है फॉर ट्रीटमेंट फॉर मेजरिंग renal stone which are measuring more than 15 mm or 20 mm. In fact, 10 से 20 mm के स्टोन्स में भी आजकल PCNL बहुत आसानी से किया जाता है। इसमें और भी ज़्यादा छोटे और मिनिएचर स्कोप डेवलप हो गए, जिसे हम मिनी PCNL कहते हैं। PCNL का अलग से फायदा ये होता है कि इसमें आपका कंप्लीट क्लियरेंस हो जाता है एक ही बार में स्टोन का, आपको मल्टीपल सिटिंग्स की जरूरत नहीं पड़ती और रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि इसमें भी कुछ एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, जिसमें कि हमें PCNL बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए या अटेम्प्ट भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर पेशेंट कंटिन्यूस एंटीकोगुलेशन थेरेपी पे है, खून पतला करने की दवाइयाँ चल रही हैं, तो ऐसे में PCNL नहीं किया जाएगा, क्योंकि PCNL को ऑपरेशन वो है बहुत ही सही, पर ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। इसके साथ साथ अगर पेशेंट को एक्टिव अगर कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, पेशेंट की यूरिन में इन्फेक्शन है, तो पहले उस इन्फेक्शन को ठीक किया जाएगा, उसके बाद ही उसका ऑपरेशन किया जाएगा। या फिर अगर हमें कोई डाउट है कि उसकी किडनी में या किडनी के रस्ते में कहीं कोई कैंसर है, तब भी यह ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। साथ में प्रेगनेंसी में, क्योंकि एक्सरे की फिल्म जो होती है वो प्रेगनेंसी के लिए डेंजरस होती है, तब भी ये ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। अब हम थोड़ी सी डिटेल में PCNL के प्रोसीजर के बारे में आपको बताएंगे।
सीसीएनएल एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर होता है जिसमें कि एक छोटे से छेद से पीठ में एक छेद किया जाता है जहाँ से कि आपके स्टोन को रिमूव किया जाता है। ये प्रोसीजर जनरली जनरल एनेस्थीसिया या स्पाइनल एनेस्थीसिया में किया जाता है। मैं इसको जनरली स्पाइनल एनेस्थीसिया में करना प्रेफर करता हूँ क्योंकि इससे जनरल एनेस्थीसिया के कॉम्प्लिकेशन जो है कम होते हैं या अवॉइड हो जाते हैं। एक बार पेशेंट को एनेस्थीसिया देने के बाद पेशेंट को फिर लिथोटमी पोजीशन में लिटाया जाता है और लिथोटमी पोजीशन के अंदर एक सिस्टोस्कोप जिसको कि हम एक टेलीस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लैडर की बोल सकते हैं, इसका ब्लैडर का टेलीस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। ब्लैडर के अंदर हमें यूरेटर की दोनों ओपनिंग विजुलाइज होती है और उस ओपनिंग के थ्रू हम एक यूरेट्रिक कैथेटर पास करते हैं और वहाँ से एक डाई डालते हैं। इस इमेज में आप एक्सरे इमेज में आप देख सकेंगे कि ये ऊपर की जो किडनी है इसकी एनाटॉमी बहुत अच्छे से डिलीनिएट हो रही है और यहाँ ये जो ब्लैडर के अंदर एक सिस्टोस्कोप है और एक ये डाई पूरे ऊपर तक जा रही है। ये सिमिलर इमेज इस साइड भी देखी जा सकती है। Now after completing this procedure in the lithotomy position, now patient is turned in a prone position, जैसे कि पेशेंट को उल्टा किया जाता है, पेशेंट को उसके बैक के ऊपर लिटाया जाता है। ये कुछ स्टार्टिंग के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि उसके बाद यूज किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक ये पंचर नीडल है जो एक पतली सी नीडल होती है जिसे कि यूज किया जाता है किडनी में एक्सेस पाने के लिए। उसके बाद ये फेशियल डायलेटर्स होते हैं जिससे कि हम उस ट्रैक को बड़ा करते हैं और फाइनली एम्प्लाज शीट हम डालते हैं जिसके थ्रू हमारा नेफ्रोस्कोप जाता है। अब इस इमेज में ये ऑपरेशन थिएटर की इमेज है। इसमें आपको हम दो इमेजेस साइमल्टेनियसली दिखा रहे हैं। एक इमेज ये पेशेंट जो है ये उल्टा लेटा हुआ है। ये जो इमेज है ये पेशेंट का एक्सरे रियल टाइम एक्सरे हो रहा है। इस एक्सरे में आप देख सकते हैं ये जो कैलिसेस आपको दिख रहे हैं ये किडनी के कैलिक्स हैं और एक ये पतली सी नीडल जो है ये अंदर जा रही है। ये आप स्किन सरफेस से हम एंटर कर रहे हैं। ये हम रियल टाइम फ्लोरोस्कोपिक इमेज में कर रहे हैं। अब आप ये देखेंगे जो डार्क काला काला राउंड सा ऑब्जेक्ट है ये एक स्टोन है, तो हम डायरेक्टली किडनी के अंदर करते हुए स्टोन तक पहुंच गए। इस इमेज में आप देखेंगे कि हम ये पंचेस जनरली जो है 12 रिब के नीचे और इस्चियल स्पाइन के ऊपर रखते हैं। यहाँ पे इंजरी होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। एक बार नीडल जाने के बाद जब नीडल से यूरिन क्लियरली फ्लो आउट होने लगता है तो इसका कंफर्मेशन हो जाता है कि नीडल जो है एग्जैक्टली किडनी के अंदर जा चुकी है। जब ये फ्रेश यूरिन आने लगता है तो उसके बाद हम एक वायर डाल देते हैं इसके थ्रू। अब हमारी नीडल भी अंदर है किडनी के, हमारी वायर भी अंदर है। अब हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे नीडल को रिमूव किया जाता है और इस वायर के ऊपर सर्टेन मेटेलिक डायलेटर्स और फेशियल डायलेटर्स से उस रस्ते को बड़ा किया जाता है। काटा नहीं जाता, बस थोड़ा सा जोर लगा के बड़ा किया जाता है। यहाँ आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि एक के ऊपर एक डायलेटर डाले जा रहे हैं और इस रस्ते को थोड़ा सा बड़ा किया जा रहा है। फाइनली एक एम्प्लाज शीट डाल दी जाती है और आप देखेंगे कि इंसिजन जो है लेस देन 1 सेंटीमीटर ही रखा जाता है। उसके बाद ये हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि ये नेफ्रोस्कोप कहा जाता है इसको। ये किडनी के अंदर जाके किडनी की एनाटॉमी को देखता है। इन्हें हम फोर्सेप्स कहते हैं जो कि किडनी के अंदर जाके फोर्सेप्स से हम स्टोन को रिमूव किया जाता है। जब इस ट्रैक के थ्रू हम इस नेफ्रोस्कोप को अंदर डालते हैं, अंदर हम देखते हैं कि स्टोन कितना बड़ा है। अगर कोई छोटा सा स्टोन है तो हमें डायरेक्ट फोर्सेप्स से पकड़ के से निकाल लेते हैं। अगर स्टोन बड़ा है तो हमें उसे कुछ लेजर एनर्जी के थ्रू जैसे कि लिथोट्रिप्टर या फिर वोल्यूमेट्रिक लेजर के थ्रू छोटा छोटा करके फिर उसे फोर्सेप्स से निकाला जाता है। आफ्टर द प्रोसीजर द डबल जी स्टेंट इज प्लेस्ड इन द किडनी। ये डबल जी स्टेंट एक तरीके का स्टेंट होता है जो कि आपका एक एंड इसका किडनी में होता है और एक एंड ब्लैडर में होता है। इसका पर्पस ये होता है कि ऑपरेशन के बाद अगर कोई भी ब्लीडिंग हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है या कुछ फ्रैगमेंट्स रह गए हैं तो वो बहुत आसानी से स्टेंट के थ्रू पास हो जाता है। इस एक्सरे में भी आप देख सकते हैं कि एक ये स्टेंट जो है ये किडनी में पड़ा हुआ है। इस स्टेंट को नॉर्मली हम 20 दिन बाद या महीने भर बाद निकाल देते हैं। अगर स्टोन काफ़ी बड़ा है और ज़्यादा हमें और ब्लीडिंग का रिस्क लगता है या इन्फेक्शन होने का रिस्क लगता है
तो हम एक पतली सी ट्यूब डाल के छोड़ देते, जिसे हम नेफ्रोस्टमी ट्यूब बोलते हैं। उसे भी 1 दिन बाद रिमूव कर दिया जाता है। अब इसके कुछ एक पोटेंशियल रिस्क और कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि कोई भी सर्जरी बिना रिस्क और कॉम्प्लिकेशन के पॉसिबल नहीं है। इस सर्जरी का सबसे बड़ा रिस्क रहता है ब्लीडिंग। कभी कभार इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस केस में हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा लेकिन ओपन सर्जरी से फिर भी बहुत कम ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। कभी कभार इन्फेक्शन होने के चांसेस, आसपास के ऑर्गन्स को चोट लगने के चांसेस, पेशाब में इन्फेक्शन होने के चांसेस, ये सब बहुत रेयरली कॉम्प्लिकेशन से जो कभी कभार इसमें हो सकती है। इसके अलावा कभी कभार क्या होता है कि स्टोन बहुत बड़ा होता है, तो कंप्लीट स्टोन रिमूवल एक बार में पॉसिबल नहीं होता, तो उसको स्टेज करके 2 बार में निकाला जाता है। स्टोन बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? स्टोन ना बने इसके लिए हमें अपने समाज में जैसे कहा गया है कि अपने सर्काडियन रिदम, जैसे डॉक्टर सलीम ने भी बताया कि टाइम से खाना खाना चाहिए, हेल्दी बैलेंस डाइट खानी चाहिए। बस यही सब छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। पानी बहुत अच्छे से लेना है, अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखना है, दिन में 4 से 5 लीटर पानी जरूर लें, और खाना में प्रॉपर हर एक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटामिन, मिनरल्स हर एक की मात्रा अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में हो, जैसे कि बैलेंस डाइट में होती है। इसके अलावा एक रेगुलर एक्सरसाइज हमें डेफिनेटली करनी चाहिए, जो कि एक डेली रूटीन में हमें शामिल करनी चाहिए, जिससे कि ये सब बीमारियां होने के चांसेस काफ़ी कम होंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। एक्चुअली स्टोन का जो साइज है, ये पहले तो पेशेंट आपके पास आते हैं, उसको कोई सिम्टम्स नहीं होगा, वो सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ले आएंगे आपके पास कि उनके पास 4-5 mm का स्टोन है। तो जनरली 4-5 mm का स्टोन अगर किडनी में पड़ा हुआ है, तो उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि ऐसी कोई दवाई की भी जरूरत नहीं होती, उसको सिर्फ प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स और हाइड्रेशन बोला जाता है। हाँ, अगर यही स्टोन उसका 4 mm तक का या 5 mm तक का यूरेटर में आके फंस जाता है, जो कि पेशाब की नली जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें हम थोड़े बहुत थेरेपी होती है, कुछ एक ड्रग्स होते हैं जो जिनका रोल रहता है, जैसे कि कोई अल्फा ब्लॉकर हम देते हैं या स्मूथ मसल रिलैक्सेंट देते हैं। वो क्या करते हैं कि यूरेटर की जो मसल होती है वो स्मूथ मसल से बनी हुई होती है, तो उसको रिलैक्स कर देंगे। साथ में आप उसको बताएं कि थोड़ा बहुत पानी ज़्यादा लें, उसी से वो स्टोन पास आउट हो जाएगा। अगर यही स्टोन का साइज जो है 7-8 mm है, 10 mm तक है, तो उस कंडीशन में हमें ये देखना पड़ता है कि अगर यूरेटर में है कि किडनी में। अगर तो यूरेटर में वह स्टोन है, 5 mm से कम साइज के जो स्टोन होते हैं उनके 90% चांस होते हैं कि वो अपने आप उसमें से पास हो जाएंगे। जैसे जैसे ये साइज बढ़ता रहता है, स्टोन पास होने के अपने आप चांसेस कम हो जाते हैं, और 1 सेंटीमीटर के ऊपर अगर स्टोन होगा तो उसके पास होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। फिर भी 7-8 mm तक का अगर स्टोन है, तो आप पेशेंट को मेडिकल लाइन ऑफ थेरेपी का एडवाइस किया जा सकता है, कुछ दवाइयों को लेके देख सकता है, पानी वगैरह ज़्यादा देख सकता है, कुछ टाइम वेट कर सकता है, लेकिन उसे एक साथ में सीटी स्कैन एडवाइस कर देना चाहिए, क्योंकि सीटी स्कैन में हमें एग्जैक्ट साइज लोकेशन उसकी हार्डनेस कितनी है वो पता लगेगा। साथ में हमें ये भी पता लगेगा कि यूरेटर की एनाटमी कैसी है। कई बार यूरेटर नीचे आके इतना पतला हो जाता है कि 5 mm का स्टोन भी उसे नहीं पास हो सकता, तो ऐसे कंडीशन में फिर आपको उसको ऑपरेशन के लिए स्कैन करना पड़ेगा। या फिर अगर किडनी का स्टोन है, किडनी के स्टोन में अगर साइज जो है 7-8 mm 10 mm तक है, लोअर कैलिक्स में पड़ा है, अगर लोअर कैलिक्स में उसको कुछ सिम्टम नहीं कर रहा है, तो उसको यूटीआई नहीं कर रहा है, किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई हाइड्रोनेक्रोसिस भी नहीं है, तो वेट एंड वॉच किया जा सकता है। लेकिन अगर ये 10 mm के ऊपर अगर बढ़ रहा है, तो उसके अंदर 2-3 थेरेपी और लाइन ऑफ थेरेपीज हैं। एक तो जो मैंने आपको पहले बताया, शॉकवेव लिथोट्रिप्सी का एक ऑप्शन दिया जा सकता है, एक रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी का ऑप्शन दिया जा सकता है, और एक पीसीएनएल का ऑप्शन दिया जा सकता है। 10 mm से 15 mm के स्टोन के साइज में आप मिनी पीसीएनएल का ऑप्शन ले सकते हैं। साथ में आरएआरएस का ऑप्शन, जैसे कि हम रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी का जो ऑप्शन है वो दे सकते हैं। रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी में कुछ एक ड्रॉबैक्स भी हैं। आजकल लेटेस्ट जो है वो रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी भी आ चुकी है, उसके अंदर कोई भी इंसिजन नहीं लगता, ये उसका फायदा है। नुकसान उसका ये है कि वो 2 से 3 सेकंड लग जाती है पेशेंट के ऑपरेशन में।
और अगर 15 mm से ऊपर है तब तो आपका पीसीएमएल स्टैंडर्ड है, उसमें आप पीसीएमएल के साथ जा सकते हैं, वो आपका गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर पेशेंट चाहता है कि उसे बिल्कुल चीरा 1 सेंटीमीटर का चीरा भी नहीं चाहिए तो फिर आप RRS कर सकते हैं। लेकिन RRS में आपको पेशेंट को काउंसिल करना पड़ेगा कि आपको 2 से 3 फिटिंग उसमें लग सकती है, वो कंप्लीट क्लियरेंस नहीं भी हो सकता, ये पॉसिबिलिटी उनमें रहती है। और अगर बहुत बड़ा सेवन स्टोन है जब आपको बताना जरूरी नहीं है कि एक बार में पूरा निकाल देंगे, 5 सेंटीमीटर का स्टोन है अगर तो उससे बताया जाता है कि उससे हमें पार्ट्स में निकालना पड़ेगा, 2 बार में, कई बार 3 बार में उसकी सेवा करके निकाला जाए। According to studies, it has been seen that hereditary factor also plays a role in the formation of renal stone. अगर उसको स्टोन ऑलरेडी एक बार हो चुका है तो देर का 50 to 60% चांसेस कि उसको दोबारा होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर वो अपना उस टाइम पे स्टोन एनालिसिस करवा लेगा, जैसे स्टोन रिमूव करा के स्टोन एनालिसिस करा ले कि किस तरह का स्टोन है, क्या वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है, क्या वो यूरिक एसिड स्टोन है, तो उससे टाइप ऑफ स्टोन पता लग जाएगा। अगर वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है तो उसे खास तरीके से ध्यान रखना होगा कि ऐसे खाने जो कि ऑक्सलेट में ज़्यादा होते हैं वो नहीं लेने हैं। जैसे कि कोई बीज वाली सब्जियां हैं जिनको कहते हैं कि अगर ऑक्सलेट मिक्स है तो नहीं लेना, कोई कैल्शियम सप्लीमेंट अलग से नहीं लेना, नॉर्मल डाइटरी कैल्शियम ले सकते हैं लेकिन कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं लेना। यही अगर किसी पेशेंट को यूरिक एसिड स्टोन आता है तो उससे हमें बताना होता है कि आपका प्रोटीन इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा है, आपको अपना प्रोटीन इंटेक कम रखना होगा, रेगुलर और हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखना होगा। तो ऐसे जब हम स्टोन एनालिसिस करते हैं तो उससे हम कुछ हद तक इन कंडीशन को बचा सकते हैं। अगर आप हेल्दी डाइट हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं रखेंगे तो बिल्कुल होगी, दवाई लो या नहीं लो होगी ही होगी। कैल्शियम कार्बोनेट बल्कि अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं तो वो इनफैक्ट कॉज भी कर सकता है रीनल स्टोन, क्योंकि कैल्शियम ऑक्सलेट बहुत कॉमन टाइप का स्टोन है जो कि फॉर्म होता है। एक्सेस ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी कंबाइंस विद द ऑक्सलेट इन द बॉडी टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। आपको अननेसेसरी सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं, आपको आपका कैल्शियम लेवल आप चेक करा सकते हैं, आपका विटामिन डी लेवल भी आप चेक कर सकते हैं। अगर नॉर्मल रेंज में है तो आपको जितना प्रिस्क्राइब है उतना ही लेना है, एक्सेस क्वांटिटी में नहीं लेना है। थैंक यू एवरीवन। Thank you, Dr. Dheeraj. I request Dr. Manju sir and Dr. Surinder Samar from Udaipur. Dr. Manju Samar and Dr. Surinder Samar, please come on the stage. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. Our next topic is artificial intelligence, and the speaker is none other than Dr. Harsh Mahajan. जब मुझे सर का इंट्रोडक्शन दिया गया, मैंने कहा सर को कौन नहीं जानता है। हमें हमारी फैमिली को किसी न किसी टाइम पे कभी ना कभी इनकी न्यूरोलॉजी सर्विसेज का यूज़ किया है। सर इज द फाउंडर एंड चीफ न्यूरोलॉजिस्ट ऑफ महाजन इमेजिंग, इज द चेयरमैन ऑफ केयरिंग, इज सेंटर फॉर एडवांस इमेजिंग research, neurosciences and genomics, is chairman of Department of Nuclear Medicine and PET scan,
He is president, consultant for pharma, honorary radiologist, and many, many more. And he has been awarded Padam Shri in 2002. Two important things which I want to say is he has been an active social worker. He runs various NGOs. He has been associated with various NGOs. And one of the most important things which strikes was Tamanna. Tamanna is a school of for children who are autistic and mentally challenged. His NGO is running that, and he has been associated and is a member of SRCC, DPS Society, Punjab National Bank, IOB, and many, many more. So it will move on and on. Thank you very much. It's a pleasure being here, and I'll take you through artificial intelligence. Most doctors are supposed to be very intelligent, but now it seems we will also be artificially intelligent. Just a word about our research division, which is called Center for Advanced Research in Imaging, Neurosciences, and Genomics, which we started about 5 years ago. And this has three verticals, uh, and the middle vertical, CARPL, which is the Caring Analytics Platform, that is the one in which we are working in the field of artificial intelligence. And we'll see some of the work we've done. Margin Imaging, of course, is the mother institution. And then we have Caring DX, where we do lab medicine as well as we have a genomics lab. These are some of our collaborators, and we collaborate with Indian, companies, Indian educational institutions, as well as those from around the world. Now, before people in your country or around the world start taking you seriously, you have to show some academic credentials. And this paper actually did that for us. This was published in 2018 in the Lancet. And this is from our group, along with our collaborators, Cure.ai out of Mumbai, and collaborators from Mayo Clinic. And this was a paper, the first paper ever on AI to be published in the Lancet. And this showed that we could use an AI algorithm to do automatic reading of CT scans in the head with very accurate results. This was another paper from our group, uh, how to get US FDA. If someone from India is writing that how AI should be, uh, uh, going for US FDA, unboxing AI. AI is supposed to be the black box, and this was our attempt at showing what, uh, unboxing. What is the thought process going inside the computer with AI? Uh, Audit AI आपने देखा होगा पैंडेमिक के दौरान कई थे क्लेम कि फलाना यूनिवर्सिटी ने एआई बनाया या फलाने ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डायग्नोस कर लेगा कि कोविड है कि नहीं है. So it is important to check those, and for that there is what is called algorithmic audit, again a word coined by us and published in academic radiology, and so on and so forth. Now, over 120 presentations in international forum create credibility कि जो हम कह रहे हैं उसको कोई सुने. Uh, then this was a paper for which we got a very unique award. Can AI generate clinically appropriate X-ray reports? एंड इसमें ये देखा कि जब रेडियोलॉजिस्ट चेस्ट एक्सरे की रिपोर्ट लिखता है तो वो कुड बी, शुड बी, मे बी, ऐसे वर्ड यूज करता है. ये सब आपने देखे होंगे. और एआई जो था वो इसको कम इस्तेमाल करता है, ज्यादा डायरेक्ट रिपोर्ट देता है. ये कुछ हमारे जो. नाउ कमिंग टू द बेसिक पॉइंट, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है. 1956 में ये वर्ड कॉइन हुआ था.
रिसेंटली ये पॉपुलर हो गया क्योंकि जो हमारी कंप्यूटर है और कंप्यूटेशनल पावर है वो बढ़ गई। हम सब ने अपनी जेब में एक सुपर कंप्यूटर रखा हुआ है, जो अगर हम देखें तो 10 साल पहले भी देखें तो ये बहुत हाई एंड कंप्यूटर्स में ये कंप्यूटिंग पावर थी। और बेसिकली ये है to find hidden patterns in data using high-end computing, and इसका फील्ड ऑफ computational neuroscience से काफी ओवरलैप। What are types of artificial intelligence? ये फोटो काफी फेमस फोटो है, जब कि एक कंप्यूटर ने जो वर्ल्ड के चेस चैंपियन थे गैरी कैस्परोव उनके साथ एक कंपटीशन किया और कंप्यूटर ने उन्हें हरा दिया। तो दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, कि कंप्यूटर को आपने एक चीज सिखाई और वो इतना अच्छा हो गया कि जो दुनिया का बेस्ट आदमी है उसको भी उसने हरा दिया। दूसरा है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ह्यूमन बीइंग्स आर एट लेवल। इसमें क्या है, आपने एक चीज सिखाई और उसी से वो दूसरी तीसरी चौथी चीज अपने आप सीख जाता है। दिस इज द नेक्स्ट फ्रंटियर, इट्स अ इमर्जिंग फील्ड। एंड तीसरी फील्ड है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, जो कि हम मूवीज में देखते हैं, साइंस फिक्शन बुक्स लिखी गई हैं, जिसमें ये होता है कि जो रोबोट्स है वो रूल करेंगे वर्ल्ड को। आपने कंप्यूटर को इतना बढ़िया बना दिया कि उसने आप ही पे हावी हो गया। और इसमें क्या है कि आपको कंप्यूटर को डेटा फीड करना पड़ता है। चेस्ट एक्सरे का अगर हम एक एल्गोरिथम बना रहे हैं जिसमें कि कंप्यूटर ही चेस्ट एक्सरे की रिपोर्ट लिख देगा, रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है, तो उसमें हमें हजारों लाखों चेस्ट एक्सरे फीड करने होंगे, जिसमें वो पैटर्न ढूंढ के और फिर रिपोर्ट लिख पाएगा। जैसे कि अगर कोई 3 देखे, कई तरह से नंबर ही लिखा जा सकता है और उन सब फीड करना पड़ेगा, तभी कंप्यूटर रिकग्नाइज कर पाएगा, नहीं तो इवन इतनी बेसिक सी चीज भी वो नहीं कर पाएगा। बाकी हम देखें एआई डिफरेंट फील्ड्स ऑफ हेल्थ केयर में पर्कुलेट कर रहा है, प्रिवेंटिव एंड पॉपुलेशन हेल्थ, प्रिडिक्शन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स फ्रॉम रेटिनल फंडस फोटोग्राफ। तो रेटिना की फंडस की फोटोग्राफ देख के वो आपका कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बता देता है। ऐसे एल्गोरिथम अभी अवेलेबल है। डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी में इसका यूज शुरू हो गया है और हमें लगता है अगले 5-7 साल में ये रेडियोलॉजिस्ट के साथ बहुत हद तक compete करने लगेगा। और थेरेप्यूटिक्स में जहां एआई के चलते जो ड्रग डिस्कवरी है उसको, जिसको 16-18 साल लगते हैं, उसका टाइम भी श्रिंक कर सकता है, कॉस्ट भी कम कर। अब रेडियोलॉजी की बात करें, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, तो बेसिकली जो एक रेडियोलॉजी साइकिल है वो क्या है, पेशेंट शेड्यूलिंग एंड प्रिपरेशन, एक्चुअल स्कैनिंग एंड इमेज एक्विजिशन, फिर उसको प्रोसेसिंग और एनालिसिस, और फाइनल जो होली ग्रेल कहते हैं हम, दैट इज डायग्नोसिस, जो मैं रेडियोलॉजिस्ट के तौर पे करता हूँ कि स्कैन देखा और कहा इसको ये है। तो पेशेंट शेड्यूलिंग की बात करें तो मशीन लर्निंग फॉर प्रिडिक्टिंग पेशेंट वेट टाइम्स एंड अपॉइंटमेंट डिले, ये हर जगह होता है। स्पेशली एमआरआई के लिए अगर आप जाएंगे तो 2 बजे का टाइम दिया है तो 2:30-3 बजे से पहले नहीं होगा। एक किसी ने एआई एल्गोरिथम बना दी, जो कि ये मैस जनरल हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में बनाया गया, जो कि ये प्रिडिक्ट कर देता है कि ये जो मरीज आया है इसका वेटिंग टाइम क्या होगा, ताकि आप उसी की तरह एडजस्ट कर लें। दिन में सुबह आपने देखा और काफी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकता है। सो इवन यहाँ तक ये बात पहुंच गई है। देन प्रिडिक्टिंग शेड्यूल्ड हॉस्पिटल अटेंडेंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने आगे स्कैन के लिए 25 अपॉइंटमेंट दी हुई है, उनमें से 4-5 लोग नहीं आते। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम है जो बड़ा क्लियरली प्रिडिक्ट करती है कि ये 25 में से
लाइक्लीहुड है कि ये 4 नहीं आएंगे, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर स्कैनिंग और इमेज एक्विजिशन की बात करें, यहाँ पे क्या है कि ऑटोमेटिकली जब हम एमआरआई करते हैं हेड का या सीटी करते हैं, तो हम कुछ लाइंस डालते हैं। मरीज आज आया, उसके एक एंगल से स्कैन लाइन डाली, अगली बार आया किसी और एंगल से डाली, वो एक रहता है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते हुए हर बार उसी तरीके से लाइंस जाएंगी, ताकि रिप्रोड्यूसिबिलिटी रहेगी, एक्यूरेसी रहेगी। फिर ये हमारा काम है, ये हमने प्रेजेंट किया 2018 में RSNA में, कि प्रिडिक्टिंग, इसको हमने सिंथेटिक पेट का नाम दिया। आप सीटी स्कैन दीजिए मुझे चेस्ट का, मैं आपको पेट सीटी दे दूंगा बिना पेट किए, और ये देखिए ये बड़ा अजीब लगता है, असंभव लगता है, बट वी शोड दैट दिस इज पॉसिबल। These on your left is a CT scan, in the middle is a true PET, and on the right is synthetic PET. इस पेशेंट का हमने पेट जो है सिर्फ सीटी स्कैन दिया कंप्यूटर को, उसने ये उससे पेट स्कैन की इमेज निकाल दी। और ये देखिए लेफ्ट में सीटी है, बीच में एक्चुअल पेट स्कैन है, और राइट में वो है जो कंप्यूटर ने बनाया बिना पेट स्कैन की इमेज देखे हुए, और ऐसे ही नीचे आप केस देख सकते हैं। सो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने एक टेस्ट किया ही नहीं, दूसरे टेस्ट के बेसिस पे आपने वो जनरेट कर दिया। ऑफ कोर्स इसके लिए अभी ये क्लिनिकल डोमेन में नहीं आया है, इस पे और बहुत काम होना है, बट हमने ये दिखाया कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये देखिए, फिर आप जानते हैं जब हम एमआरआई करते हैं ब्रेन का, तो कई तरह से करते हैं, T1 वेटेड, T2 वेटेड, फ्लेयर। यहाँ पे हमने क्या किया है, और ये भी 2019 में हमने प्रेजेंट किया हमारे ग्रुप ने, कि T2 वेटेड इमेज आप ब्रेन की देंगे, जिसमें से डिफ्यूजन वेटेड इमेज होती है जो स्ट्रोक को बहुत अच्छी तरह दिखाती है। वो एक्चुअली वर्चुअल फ्यूजन इमेज बिना उसके किए, बेस्ड ऑन दी T2 इमेज, वो जनरेट हो जाती है। सो पॉसिबिलिटी जो है इस फील्ड में वो बहुत है। फिर प्रोसेसिंग और एनालिसिस, जब हम इमेज एक्वायर करते हैं तो वो बेसिकली एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, उसको फोटो में कैसे तब्दील किया जाए, वो प्रोसेसिंग और एनालिसिस से होता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये ऑटोमेटेड लिवर वेसल एंड ट्यूमर सेगमेंटेशन, ट्यूमर कितना, उसका कितना वॉल्यूम है, लिवर कितना बड़ा है, लिवर ट्रांसप्लांट करने में आपने वॉल्यूम्स कैलकुलेट करने होते हैं, कट कहाँ से आप देंगे, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम को यूज करके किया जा सकता है। ये देखिए ऑटोमेटिकली जो आर्टरी है, जो ट्यूमर है, वो सब, मतलब इसमें आज की डेट में अगर हम कहें तो आधा पौना घंटा भी लग सकता है एक रेडियोलॉजिस्ट को। ये ऑटोमेटिकली चंद सेकंड्स में मशीन कर देती है। ये ऑटोमेटेड स्पाइन एमआरआई एंड एनालिसिस, क्या हाइट है वर्टिब्रा की, क्या हाइट है डिस्क की, कितना निकला हुआ है, क्या जो स्पाइनल कनाल है उसका कितना डायमीटर है, हड्डी एक के ऊपर एक खिसकी तो नहीं, खिसकी तो कितना खिसकी, ये सब ऑटोमेटिकली। तो ये रेडियोलॉजिस्ट का हेल्पर बन सकता है, रेडियोलॉजिस्ट को हेल्प कर सकता है। ऑटोमेटेड सेगमेंटेशन, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का केस है, जिसमें कि मल्टीपल लीजन होते हैं, कितने बड़े हैं, क्या उनका नंबर है। जब हम कंपेयर करते हैं एक स्कैन और दूसरे स्कैन से 1 साल बाद किया गया, तो वो ऑटोमेटिकली ये कर देता है। और ये स्पेन में काम हो रहा है जहाँ पे ये किया गया है। फिर फाइनल जो चीज़ है डायग्नोसिस, और ये हमने जी हेल्थ केयर के साथ मिलके काम किया था। ये अब एक मशीन आ गया है, एक्सरे किया उस मशीन से, तो अगर न्यूमोथोरैक्स है तो ऑटोमेटिकली मशीन आवाज करेगी, और जो वहाँ टेक्नीशियन है, डॉक्टर है, उनको बता देगी कि इस पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स है, इसका जल्दी से आप ट्रीटमेंट करिए। ये मशीन में ही डाल दिया गया है, इसको क्रिटिकल स्वीट कहते हैं।
ये वो लैंसेट वाला पेपर हमारा था जिसमें कि ऑटोमेटिकली ये दिखा देता है ब्रेन में ब्लीडिंग है, कितना वॉल्यूम है, किस टाइप की ब्लीडिंग है। और अगर हम देखें तो जो एक्यूरेसी थी वो 95%, 96% एक्यूरेट है। यहाँ पे कोई रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं। रात को सीटी स्कैन हुआ तो न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन खुद देख लेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिपोर्ट आ जाएगी। फ्रैक्चर्स, इवन बेस के फ्रैक्चर्स बड़ी इजीली दिखा रहे हैं। और ये हमने एक डैशबोर्ड बनाया है जो कि दिखाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कितने टाइम सही थी, रेडियोलॉजिस्ट कितने टाइम सही था, और दोनों में मिसमैच जो था। तो आने वाले दिनों में ये होगा कि दोनों चीजें देख के जब हमारा फेथ बढ़ जाएगा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम में, तभी हम उसको यूज करेंगे। और एक डिफरेंट रेडियोलॉजिस्ट आर्बिटर बनता है जो बताता है नहीं एआई ठीक था या रेडियोलॉजिस्ट ठीक था। और ये काफी काफी हमने काम किया है, पेपर लिखे हैं। आज की डेट में कोई 50 एआई एल्गोरिथम्स हैं दुनिया में जिनको यूएस एफडीए अप्रूवल मिल गया है और यूज इन द क्लिनिकल सेटिंग। एंड ये सारी इतनी कंपनियां हैं, इतने ग्रुप हैं वर्ल्ड में लगे हुए हैं एआई में, और हम कोई 60 ग्रुप है इनमें से जो जिनके साथ काम करते हैं। तो अब समय कम है। एक चीज है लाइबिलिटी, कि लायबल कौन होगा अगर रिपोर्ट गलत हुई। क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम बनाने वाला होगा, या वो जो रेडियोलॉजिस्ट है जिसने साइन किया, कोई तो साइन करेगा, या वो हॉस्पिटल होगा, या वो इंश्योरेंस कंपनी होगी, कौन लायबल होगा। कई क्वेश्चंस अभी भी खुले हुए हैं। बट बेसिकली मैं ये कहूँगा, इनफैक्ट यहाँ लिखा है हु गोज टू जेल। सो आने वाला समय बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। एंड आई थिंक ऑलरेडी जब हम ये सोचते नहीं है, गूगल मैप यूज करते हैं तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही यूज कर रहा है। सो ये हेल्थ केयर में आएगा, आ रहा है। और इससे हमें जो लगता है एक्यूरेसी बढ़ेगी, कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, टर्न अराउंड टाइम कम होंगे, और कॉस्ट जो है हेल्थ केयर की वो कम होगी। वेरी मच। We hope that doesn't happen, but that is artificial super intelligence, where और हम वो मूवीज भी देखे हैं बचपन में, और फिक्शन नॉवल भी पढ़े हैं कि वो रोबोट्स जो हैं वो रूल कर रहे हैं आपको। तो आई होप दैट डे नेवर कम। एनीथिंग इज पॉसिबल। Any? That's a very good question. These legal issues are still to be addressed. The questions are still open, but already, as you know, artificial intelligence is being used even for driverless cars. You know, AI is used in, the aeroplanes in a major, major way. But for healthcare, laws are still in formulation. But I'm sure as it gets used more and more, they will come into being very quickly. Thank you very much, sir. Through your slides, I've seen that it's both exciting and both scary. I hope it's good. I now request Dr. Suresh Jain and Mamta Jain to come on the stage, please. Sir, on the lighter note, we can write the reports which are generated by AI. Can we write cannot be correlated to be correlated by clinical clinicians and not for medical legal purposes?
Most welcome, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Our next speaker is Dr. Rajiv Parekh, and he will be teaching about vascular health, the mantra for longevity. Recently, we have seen that a comedian had a heart attack while having workout in gym. So we all professionals need to be fit. And regarding Dr. Rajiv Parekh, he needs no introduction. Just for the formality purposes, sir is the chairman in the division of peripheral and endovascular sciences, Vedanta Medicity. He did previous and MS from MC, Kamarajat Medical College, and he has been a past vice president of many international societies, and he has been a founder of and member of Vascular Society of India. He has special interest in minimal access surgeries, carotid endarterectomy, and stroke prevention. Good afternoon. Thank you, friends. Thank you for giving me this opportunity to share some thoughts with you today. Uh, संक्षिप्त में हम लोग सब जानना चाहते हैं कि हमें कोई बीमारी तो नहीं होगी, कोई ऐसा प्रिडिक्टिव मॉडल है, कोई ऐसी प्रिडिक्टिव चीज है जिससे अगर हम उसको फॉलो करें और करते रहें तो कैन वी प्रिडिक्ट लॉन्गेविटी, हम कितने साल जिएंगे, सबके मन में सवाल रहता है. Everybody wants to know how long will they live, so that if it was possible, you could plan your future. So मैं vascular health के बारे में बात करूँगा. We all talk about cardiac health, heart health, kidney health, bone health, gynae health, बहुत सारी health के बारे में हम लोग बात करते हैं. लेकिन एक central portion, एक central चीज, एक access हमारी सबकी बॉडी में चलती है जो इन सारी हेल्थ को कनेक्ट करती है, दैट इज वैस्कुलर हेल्थ. हमारी ब्लड वेसल्स, जो खून की नसें हमारे शरीर में चलती हैं, दे आर द वंस व्हिच एक्चुअली कनेक्ट ऑल दीज वेरियस various dots. Now, atherosclerosis, as you know, is the single hallmark pathological lesion of aging. हम कितने बुजुर्ग हैं, हमारी उम्र कितनी है और कितने हमारी नसें खराब हो रही हैं, वो एथेरोस्क्लेरोसिस अगर हमें पता भी, we can predict atherosclerosis and its progression, because we all know that atherosclerosis is a progressive degenerative disorder. सबके शरीर में atherosclerosis 25 साल की उम्र से, from the age of 25, everyone starts developing atherosclerosis. It only progresses, किसी में जल्दी, किसी में तेज, किसी में ज्यादा, किसी में कम. So atherosclerosis, आपको सबको पता है, it affects the heart, it affects the brain, it affects the kidneys, and of course it affects the peripheral vascular system. Heart और kidney और lungs के brain के बारे में we've always been hearing, but we don't talk much about the peripheral vessels. Peripheral vessels are the most important predictor. इससे हमें पता लगता है how is the atherosclerosis progressing in our body. Who are the people at risk? किसको हो सकता है ये जो progression है? Mostly people with high blood pressure, people who have been smokers, who are even ex-smokers. अगर आपने smoking बंद भी कर दी है, तब भी एक X amount of risk आपकी body में हमेशा रहेगा of the period of time that you have been smoking. Diabetes is the worst, probably one of the worst, agents which will promote or sort of atherosclerosis will become progressive because of that. High cholesterol levels, heart bypass, leg bypass अगर हो चुका है या होने वाला है, or if there is a previous history of stroke or family history of stroke in the body. If somebody is a diabetic and has peripheral vascular disease, यानी कोई जख्म है, there is a diabetic foot ulcer, this is one of the worst things that can happen, because 50% of these patients जिनके पैर में diabetic foot ulcer है, they will be dead in 5 years. अगर उनको कोई amputation होता है, अगर diabetic foot amputation होता है, तो 50% of these patients will be dead in 5 years. It is a very, very extensive disease and it affects almost all the blood vessels in the body.
10% of patients who have had a coronary bypass or a stent. 10 years after that procedure, 10% of these patients can develop what is called an aortic aneurysm. The whole aorta can start expanding and you start developing an aortic aneurysm if if a person has had a stent or a coronary bypass. So this is a person who is prone to progressive atherosclerosis. And of course, 25% of patients with left main heart disease will have significant carotid disease and which will probably have, can cause a stroke because of the narrowing of the carotid artery in the neck. Now, some examples very quickly. पैरों में गैंग्रीन हो सकती है, उंगलियों में गैंग्रीन हो सकती है. This is a carotid artery which is narrowed, which is causing a stroke, and we have removed that open करके. We have removed the plaque, and you can see the plaque on the left hand side, and that has been removed, and then of course the artery is removed. So this is a carotid endarterectomy. This is for prevention of stroke. Anybody who is having a stroke, उसकी carotid artery में जो blockage, that can be removed, and of course any aortic aneurysm. These days you don't have to do a full aortic surgery for this. ये जो right side पे आप देख रहे हैं, these are stent grafts which can be placed through a puncture hole. जैसे angiography होती है, वैसे ही we can place these aortic stent grafts from the groin up without an open operation, and the aneurysm can be completely sealed. Now, if somebody has a diabetic foot ulcer, gangrene हो रही है in the leg, unless we improve the vascularity and increase the vascularity, this patient will develop gangrene and of course will land up with an amputation. So left side पे if you see, that is the popliteal artery which is narrowed, and we have done an angioplasty. जो red film दिख रही है आपको, इसे we have with a balloon, we have opened up these arteries like an angioplasty, and that results in the healing of the wound. As you can see, amputation हो गया, wound heal नहीं हुआ, लेकिन जब हमने बलूनिंग करी, एंजियोप्लास्टी करी, उसके बाद में the wound healed up. ये तो आर्टरीज पे था, diabetic foot ulcers, aortic aneurysms, carotid disease. But veins also get affected. Veins also have a significant amount of disease. Varicose veins is probably amongst the commonest venous disease. Most people, if you are sitting all day, standing all day, working with standing, ladies हमारी घर में खड़ी रहती है, खड़े रह के काम करती रहती हैं, इन लोगों के पैरों में स्वेलिंग जरूर आ जाती है, और स्वेलिंग के साथ साथ वेन्स डायलेट होना शुरू हो जाती है कुछ लोगों में, और उसको हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं. एज यू कैन सी, इससे पैरों में हैवीनेस और सब प्रॉब्लम होती है, प्लस अल्सर्स बन जाते हैं, ब्लीडिंग भी हो सकती है. पहले इतने बड़े बड़े जो वेरिकोज वेन्स होते थे, इनका एक सर्जरी करी जाती थी. वी यूज्ड टू ऑपरेट ऑन देम एंड रिमूव दीज वेन्स. टुडे इट कैन ऑल बी डन विद अ मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक. एक कैथेटर हम डालते हैं और उसके थ्रू इन सारी वेन्स को अंदर ही अंदर वी कैन स्क्लेरोज देम, वी कैन shrink them, and you can see the effect on the right side. So without surgery, varicose veins can be treated as a daycare procedure. Patient comes in walking under local anesthesia, the procedure is done, and he can get up and walk home the same day. अब जो मैं आपको बताना चाह रहा था, प्रिडिक्टिव मेडिसिन. ये तो हमें पता लग गया कि वैस्कुलर डिजीज क्या होती है. व्हाट इज प्रिडिक्टिव मेडिसिन? मतलब हम कैसे डायग्नोज करना चाहें, कैसे पता लगाएं कि हमारे अंदर प्रोग्रेसिव ये एथेरोस्क्लेरोसिस का कोई प्रोग्रेशन है कि नहीं. इसके लिए अल्ट्रासाउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जो कि यू नो नॉन इन्वेजिव है, इसमें कोई रेडिएशन नहीं होती, एंड वी कैन असेस आर्टरीज. पेरिफेरल आर्टरीज कैन बी असेस्ड वेरी इजीली with an ultrasound machine, and इसके साथ में हम डायग्नोसिस कर सकते हैं. इसी के साथ में हम उसका एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोग्रेशन भी चेक कर सकते हैं सिंपल अल्ट्रासाउंड मशीन. अब ये बहुत ध्यान से सुनने वाली चीज है. हमारे शरीर में जहां जहां पर मेजर आर्टरीज का बाइफर्केशन होता है, जैसे करोटिड आर्टरी बाइफर्केट करती है, इंटरनल करोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल करोटिड आर्टरी. एओर्टा जो है पेट में बाइफर्केट करता है इनटू राइट एंड लेफ्ट कॉमन आइलियक आर्टरी. पैरों में ग्रॉइन में आर्टरी बाइफर्केट करती है, फॉर्म्स द कॉमन फेमरल एंड द डीप फेमरल. तो ये जो तीन बाइफर्केशंस हैं, इन जगह सबसे ज्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, बिकॉज एज द ब्लड इज कमिंग अप, सिंस द artery is divided, it will start hitting, the blood will start hitting this angle, and it will start developing atherosclerosis at the edge.
इसलिए ये जो बाइफरकेशन है, दिस इज द फर्स्ट प्लेस इन द बॉडी दैट एथेरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट्स। सो अगर हम, ये हमारी तीन मेजर बाइफरकेशन है, एक कैरोटिड आर्टरी, एक एओर्टिक बाइफरकेशन और एक हमारी फेमोरल आर्टरी जॉइंट में, जिसका हम अल्ट्रासाउंड से, अल्ट्रासाउंड कलर डॉपलर से बहुत आसानी से हम देख सकते हैं और इसको फॉलो अप कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई ब्लॉकेजेस, कोई एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स या अब्लूजन्स हो तो नहीं। अगर हम ये इसको फॉलो करते हैं तो जो हमारे एट रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंसिव, स्मोकर, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज जिसको हो चुकी है, कोलेस्ट्रॉल जिसका बढ़ा हुआ है, ये जो एट रिस्क लोग हैं, उन लोगों का अगर हम ये बाइफरकेशन डिजीज, जिसको हम ट्राई बाइफरकेशन स्कैन कहते हैं, अगर हम ये करते हैं तो हम उस पेशेंट को फिर एक वैस्कुलर हेल्थ स्कोर निकालते हैं। जो पेशेंट डायबिटिक है, स्मोकर है, हाइपरटेंशन है या उसको डिसलिपिडीमिया यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अगर उसको, ऐसे इंडिविजुअल को who has any of these risk factors, he also has more than 50% atherosclerotic occlusion or a plaque in either the carotid area or in the aorta or in the femoral artery. This will significantly increase his risk of dying because of progressive atherosclerosis disease. तो अगर हमने आज ये रिस्की पेशेंट जो है, एट रिस्क पेशेंट है, इनका हमने स्कैन किया और सब आर्टरी बिल्कुल क्लीन है, then you can be reasonably assured that they will not have significant disease in the near future. But every, say, 2 years or 3 years, if you keep repeating this scan, you will be able to pick up if there is any blockage or any narrowing in this area. And if there is a patient with a single risk factor, any of these four, उसको अगर 50% से ज़्यादा वहीं पर भी एक जगह भी कहीं ब्लॉकेज है, तो उसकी लाइफ समझ लीजिए 25% उसकी लाइफ कम हो जाती है at 5 years. So if there is a progression, suppose today somebody has a progressive disease of 50% stenosis, 25% stenosis in the carotid artery, and we do a scan 6 months, 1 year or 2 years later, and this has become 50%, or along with this, the femoral artery also has a blockage. This will also constitute, this risk has gone up, and this patient is at risk of having a cardiovascular morbidity, even mortality. So this is the vascular health score जो हम calculate कर सकते हैं for prognostication of of longevity. So obviously this is nothing new, ये तो सब आपको पता ही है. Healthy blood vessels के लिए we must stop smoking, must control diabetes, must control high blood pressure, reduce the cholesterol, eat healthy, and of course regular exercise. So this is essentially what I had to say. We just have to be careful with about what we eat, and if we are in the high risk group, then if this tri bifurcation scan can be done when we are turned 60 or 65 and follow this up every 3 to 5 years, we can actually gauge whether we are going to have or we are prone to any complications or not. Thank you. Thank you very much for your support. Any questions you can ask? I request Dr. Mayur Saha and Apeksha, Dr. Apeksha from Baroda. Dr. Mayur Saha, Dr. Apeksha, Dr. Anil Bhandari, Dr. S.C. Jain and Mrs. S.C. Jain. Dr. S.C. Jain from Faridabad.
Thank you, sir. Now I request Mr. M.R. Bothra for vote of thanks.